Good morning, class 11th. Today we are going to discuss the miscellaneous exercise of chapter 3, that is trigonometry. Question number 1. Prove that 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 is equal to 0. Take left hand side. 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13. We know that 2 cos x cos y is equal to cos x plus y plus cos x minus y. Put x is equal to 9 pi upon 13 and y is equal to pi upon 13 in the given formula. You will get cos 9 pi upon 13 plus pi upon 13 plus cos 9 pi upon 13 plus pi upon minus pi upon 13. You will get cos 10 pi upon 13 plus cos 8 pi upon 13. Now put this value in the given question. You will get cos 10 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 8 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13. Now cos x plus cos y is equal to 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. Apply the formula here. You will get 2 cos 10 pi upon 13 plus 3 pi upon 13 divided by 2 cos 10 pi upon 13 minus 3 pi upon 13 divided by 2 plus 2 cos 8 pi upon 13 plus 5 pi upon 13 divided by 2 cos 8 pi upon 13 minus 5 pi upon 13 divided by 2. You will get, on solving, you will get 2 cos pi upon 2 cos 7 pi upon 26 plus 2 cos pi upon 2 cos 3 pi upon 36. Take 2 cos pi by 2 common. You will get cos 7 pi upon 26 plus cos 3 pi upon 26. Now you will get 2 multiply 0 cos 7 pi upon 26 plus cos 3 pi upon 26, because cos pi 2 pi by 2 is 0. So your answer will be 0. Your left hand side will be 0. Therefore left hand side is equal to right hand side, hence proof. Question number 2. Prove that sin 3x plus sin x bracket close sin x plus cos 3x minus cos x bracket close cos x is equal to 0. You know that sin x plus sin y is equal to sin x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. Replace this x with 3x and y with x. You will get 2 sin 3x plus x upon 2 cos 3x minus x upon 2. Your answer will be sin 3x plus sin x is equal to 2 sin 2x cos x. Now cos x minus cos y is equal to minus 2 sin x plus y divided by 2 sin x minus y divided by 2. Replace x with 3x and y with x. You will get cos 3x minus cos x is equal to minus 2 sin 3x plus x upon 2 sin 3x minus x upon 2 multiplied 2 cos 2. You will get cos 3x minus cos x is equal to minus 2 sin 2x plus sin into sin x, because sin 3x plus x is equal to 4x divided by 2. You will get 2x. 3x minus x is equal to 2x. 2x divided by 2 is sin x. Now solving left hand side, sin x plus sin 3x into sin x plus sin x cos 3x minus cos x into cos x. Putting the value of 1 and 2. आप यहाँ पे 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देंगे. यू विल गेट 2 sin 2x cos x इंटू साइन एक्स प्लस माइनस 2 sin 2x इंटू साइन एक्स cos x. On solving you will get 2 sin 2x cos x sin x minus 2 sin 2x sin x cos x. These values get cancelled out and the result will be 0. Now question number 3. Cos x minus cos y का whole square plus sin x minus sin y का whole square is equal to 4 sin square x minus y upon 2. The formula of cos x minus cos y is minus 2 sin x plus y divided by 2 sin x minus y divided by 2, and the formula of sin x minus sin y is 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2. Put the value. You will get minus 2 sin x plus y upon 2 sin x minus y upon 2 का whole square plus 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2 का whole square. Now the square of minus 2 is 4
साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, टू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू. You will get 4 sin square x plus y upon 2 sin square x minus y upon 2 plus 4 cos square x plus y upon 2 sin square x minus y upon 2. Sin square x plus cos square x is equal to 1. If we replace this x by x plus y upon 2, so we will get sin square x plus y upon 2 plus cos square x plus y upon 2 is equal to 1. Take 4 sin square x minus y upon 2 common. You will get sin square x plus y upon 2 plus cos square x plus y upon 2. The value of this is 1. So you will get 4 sin square x minus y upon 2, that is equal to your right hand side. Now question number 5, sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to 4 cos x sin 2x sin 4x. आप दो की पेयरिंग कर लीजिए और उस पेयरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई का. बट पेयरिंग किन की करेंगे ये आपको सोच के चलना है. लाइक अगर मैं साइन 3x और x की पेयरिंग करती हूँ तो 3x प्लस 4x हो जाएगा यानी कि 2x आएगा, और 7x प्लस 5x करती हूँ तो आपके पास 12 यानी कि 6x आएगा. कुछ भी कॉमन टर्म निकल के आएगी. तो बेटर है कि हम पेयरिंग उनकी करें जहाँ से हमें कुछ कॉमन कुछ ईजी निकल के आए. तो आप यहाँ पे साइन x और साइन 7x की पेयरिंग कर दीजिए. सिमिलरली साइन 3x और साइन 5x की पेयरिंग करिए. तो यू विल गेट एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला. यू द साइन 7x प्लस साइन x को आपने कंबाइन किया, साइन 5x प्लस साइन 3x को कंबाइन किया. अब अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y का, दैट इज़ 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2. तो यू विल गेट 2 साइन 7x प्लस x अपॉन 2 कॉस 7x माइनस x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2. तो यू विल गेट 2 साइन 8x अपॉन 2 कॉस 6x upon 2 plus 2 sin 8x upon 2 cos 2x upon 2. On solving this, you will get 2 sin 4x cos 3x plus 2 sin 4x cos x. Now take sin 4x common from this, you will get cos 3x plus cos x. Now apply the formula here. आप cos 3x और cos x में फॉर्मूला अप्लाई करिए 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2. तो यू विल गेट 2 sin 4x ब्रैकेट में 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2. 2 sin 4x को बाहर कर दीजिए कॉमन आउट. यू विल गेट 2 cos 4x अपॉन 2 cos 4x अपॉन 2. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 2 cos 2x cos x cos. यहाँ पे जो आपके पास टर्म आएगी ये आएगी cos 2x अपॉन 2. इसे करेक्ट कर दीजिएगा, ये टर्म गलत है. यहाँ पे cos 2x अपॉन 2 तो यहाँ पे आपका जाएगा cos x. तो आपके पास बचेगा 2 sin 4x 2 cos 2x cos x. 2 और 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई. यू विल गेट 4 cos x cos 2x sin 4x, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, sin 7x प्लस sin 3x 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 6x. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द न्यूमरेटर sin 7x प्लस साइन 5x. अप्लाई द फॉर्मूला. यू विल गेट 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2. You will get 2 sin 7x plus 5x upon 2 cos 7x minus 5x upon 2. Now apply the same formula over there. You will get 2 sin 9x plus 3x upon 2 cos 9x minus 3x upon 2. You will get 2 sin 12x upon 2 cos 2x upon 2, that is cos sin 6x cos x. Now 2 sin 6x and this is cos 3x. So your answer will be 2 sin 6x cos 3x cos x plus cos 3x. Now solving the denominator cos 7x cos 5x cos 9x cos 3x. तो आपके पास आ जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 cos 9x माइनस 3x अपॉन 2.
आप इन दोनों को सॉल्व ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे यू विल गेट 12, तो 12/2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2x/2, यहाँ पे आ जाएगा 12x/2, यहाँ पे 6x/2, आपके पास आ जाएगा 2 cos 6x, यहाँ बचेगा cos x, यहाँ बचेगा 6x cos 3x। आप cos 6x को निकालिए कॉमन, आपके पास बचेगा cos x प्लस cos 3x। आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x सेम थिंग है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यू विल गेट sin 6x अपॉन cos 6x दैट इज इक्वल टू tan 6x। क्वेश्चन नंबर 8, you have to find the value of sin x/2, cos x/2 and tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली आपको यहाँ पे हाफ एंगल निकालने हैं, आपको साइन कॉस की जो वैल्यू है वो हाफ में निकालनी है, और जो गिवन है वो आपके पास गिवन है कि tan x क्या है -4/3 है, और x कहाँ पे लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ x है, यहाँ पे x/2 है, तो ये चीज़ भी हमें देख के चलनी है। सबसे पहले -4/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो आप इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यू विल गेट 90 से बड़ा तो 2 से डिवाइड हो गया, x भी 2 से 180 से, यानी कि जो आपका एंगल है वो लाइक कर रहा है 45 से 90 के बीच में। 45 से 90 के बीच में कहाँ लाई करेगा, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतनी चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है x है, यहाँ पे x/2 है, हाफ चल रहा है, इसलिए हमें इस चीज़ को भी सबको हाफ करना पड़ेगा। नाउ अब आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो आपको साइन कॉस tan की पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ पे। अब आपको इन सब के हाफ निकालने हैं, तो tan x की वैल्यू क्या है -4/2। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 - tan square x, और अगर मुझे tan x निकालना हो तो वो हो जाएगा 2 tan x/2 1 - tan square x/2। आप इस वैल्यू को इक्वल रखेंगे किसके, -4/3 के, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। आपने पुट किया -4/3 2 tan x/2 -1 - tan square x/2। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई आएगा 3 × 2 tan x/2, और यहाँ पे -4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट 2x/2। तो आपने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज़, tan की जगह पे -4/3 आ गया। आपने ये वाला स्टेप नहीं करना है, ये गलत है। आपके पास आएगा -4/3 2 tan x/2। अब आप इनके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिकली -4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यू विल गेट -4 × 1 माइनस, आपके पास यहाँ पे आ गया, और ये -4 ये आ गया, इंटू tan square x/2, 6 3 × 2 हो जाएगा 6 tan x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, -4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan square x/2 इक्वल टू 6 tan x/2। आप इसे शिफ्ट करेंगे। अब इस इक्वेशन को आप समझिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। आपके पास ये x हो गया, x² हो गया, यहाँ देखिए tan स्क्वायर मतलब x², ये x वाली टर्म हो गई, ये 4 हो गया। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। आपने क्या किया, tan x/2 को a से रिप्लेस करा। जब आपने a से रिप्लेस किया, आपके पास इक्वेशन बन के आई 4a² - 6a - 4 = 0। तो आपके पास आ जाएगा 4a² माइनस, अब 6 के आपको ऐसे फैक्टर करना है कि आपके पास 4 4 16 के ऐसे फैक्टर करना है कि आपके पास 6 आ जाए। तो आपने लिया 8 और 2, -8a + 2a -4 = 0। यहाँ से आप 4a कॉमन ले सकते हैं, बचेगा a - 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा a - 2। योर आंसर विल बी 4a + 2 a - 2। 4a + 2 = 0, a = -1/2, a - 2 = 0, तो a = 2। तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आई a की, एक आई 2 और एक आ गई -1/2। नाउ tan x = -1/2 और tan x/2 = 2। अब x/2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan को क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। तो tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपके पास। अब tan की वैल्यू तो 2 आ गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 + tan square = sec² x। आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आपने रिप्लेस कर दिया x को x/2 से, तो आपके पास आ जाएगा 1 + tan square x/2 = sec² x/2। अब आप इस tan की वैल्यू रखेंगे, हो जाएगी 2 का स्क्वायर, तो यू विल गेट sec² x/2 = 5, यानी कि sec² x/2 की वैल्यू तो आ गई 5। अब हमें और वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो sec x/2 कितना आ जाएगा, ±√5। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी पॉजिटिव होगा, तो cos x/2 कितना हो जाएगा, 1/√5।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। आपने यहाँ वैल्यू पुट करी और यहाँ से वैल्यू निकाली किसकी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की। वो आपके पास आ जाएगी 4/5, यानी कि साइन की वैल्यू एक्स बाई 2 की कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/√5। अब रूट को नीचे नहीं रखना है तो आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा +-2√5/5। नाउ ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो आपके पास tan कॉस और साइन की तीनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि फाइंड करना है आपको साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2, और कॉस एक्स की वैल्यू गिवन है -1/3, और ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे दैट इज़ बिटवीन 180 to 270, ये 180 से 270 के बीच में होता है। आप इसे पूरी को 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये x था, हमें x बाई 2 चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा 90 से 135। 90 से 135 मतलब आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे कॉस एक्स लिया, दैट इज़ -1/3। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो आप अगर x को x बाई 2 से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा cos 2x/2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। तो यू विल गेट cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू है -1/√3। आपने वो वैल्यू पुट करी तो आपके पास साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा 2/3। यहाँ से साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आएगी ±√2/3। तो साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, आप इसे रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है, तो आपको आ जाएगा +-6/√3। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसे आप लेंगे पॉजिटिव। आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई √6/3। अब आप क्या लेंगे, tan x। tan x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। आपने साइन अपॉन कॉस की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan x बाई 2 दैट इज़ -√2। तो आपके पास tan की वैल्यू आ गई, कॉस की आ गई, साइन की आ गई, यही आपको फाइंड करना था। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसे खुद ट्राई करिएगा।